Hallelujah. Hallelujah. We greet you all in the mighty and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Indeed, it is a great joy for me to stand before you and share from the word of God. परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और हमें और अपना दिन और अपना समय प्रभु हमारे बीच में और मेरे जीवन में दिया ताकि हम सब लोग देव प्रभु से आराधना और प्रभु से बातें कर सकता है इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में बताता हूँ ट्रांसलेशन नहीं है कभी कभी इंग्लिश कभी कभी हिंदी क्योंकि हमारे बीच में बताता हूँ इंग्लिश यानी इंग्लिश के लिए ये दोनों भाषा में बातें करना चाहता हूँ प्रभु को धन्यवाद करता हूँ पिछले हफ्ते प्रभु मेरे जीवन में भी सब कुछ सही समय पर जोड़ के सब जगह पर पूरा किया लॉर्ड माय नीड and if I turn back, look back to my life, I can say that it is only because of His grace and mercy that I could come that far. मेरे जीवन में आया मैं देखा तो जैसा आप लोग ने बताया बहुत बातें प्रभु हमारे जीवन में किया है इसलिए मैं और आज इधर बैठ के प्रभु से वचन से सीख रहा है कुछ लोग गवाही उन्होंने बताया हम ऐसा एक जीवन था हम कभी भी नहीं सोचा हम ऐसा वाले अच्छा जीवन में अच्छा किसी का जीवन में आनंद से जीवन में आए करके many of you have said through your testimony that you all led a life which was according to the worldly desires and we never thought that we will come to know God and we will come to this kind of joyful life. So it is only God's mercy and His grace. He saved us, He called us, and it is our duty that we should understand His calling. हमेशा हमको बचाए और हमको उद्धार से लेके आए उन्होंने हमको बुलाहट किया ये बात हमें याद रखना है उनका जो बुलाहट हमारे जीवन में हर एक समय हम याद रखना है उसके लिए हम दौड़ना है Many of you are here and you have a long journey to complete आप लोग इधर है और बहुत बड़ा सफर है खत्म करने के लिए कभी कभी ऐसा लगता है ना मात्र बहुत समय हो गया Sometimes we feel like we are here from a long time and when this time will come to an end. So when we think about our life, waiting period is kind of a tough time in our life. हमारे जीवन में किसी चीजों के लिए इंतजार में बैठना मतलब बहुत मुश्किल है नहीं अगर हमारा कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बहुत लोग शादी के इंतजार में है there are many who are waiting for marriage and they might be praying that right after I get graduation, I will get. And there are worrying that after coming out from Bible college, who will give me ready job? कुछ लोग ऐसी सोच में हैं मैं Bible college में पढ़ के काम वापस किया तो कौन मुझे लगेगा? There are many things we are waiting, and we are praying. How many of you are praying for few things that? And of course, many of you are waiting for your future ministry. You don't know where you will go. If you don't have that calling. और if you don't have that understanding regarding your calling, आपको परमेश्वर का वो बुलाहट आपके हृदय में अच्छी तरह से समझ में आए तो सोचना ये डाउट हमेशा आपका भी जाएगा where I will be, where I should go, what I can do. बहुत सारे लोग आपसे बताता है जब बाइबल कॉलेज पढ़ता है वो समय बहुत अच्छा समय है खुशी खुशी सब कुछ होगा इसके बाद How many of you are waiting for your graduation? आप में से कितने लोग ग्रेजुएशन का दिन इंतजार में You are waiting for graduation, but when we were in Bible college, we thought that the time should not come when I get graduated. Why? Graduation के बाद पता चलेगा मैं कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या होगा, मेरे परिवार में क्या होगा, ये सब बातें कब याद आता है? तो ग्रेजुएशन का एक दिन खुशी होगा उसके बाद हमको कुछ जगह पे जाना नहीं है तो क्या होगा उसके बाद खुशी होगा जैसा शादी का दिन खुशी होगा उसके बाद after you get married if you are not getting a good partner or if you arrange all marriage things by taking loans from here and there right after the day of marriage, how you will feel? You have to pay the EMI, isn't it? You have taken a loan from somewhere and you enjoy it. And if you are not getting a right person, a right partner in your life, after that your life is sweet. Happy होता है. So
So we all are waiting for many things, isn't it? At times we may feel tired. कभी कभी इंतजार में बैठ के बहुत भारी लगता है नहीं? आपने से किसी को ये अनुभव नहीं है जीवन में कुछ चीजों के लिए वेटिंग में होगा। कुछ लोग नया फोन के लिए वेटिंग में होगा, कब मिलेगा, मैं कौन सा मीटिंग में गया तो कौन सा पार्टी मुझको गिफ्ट देगा। अलग अलग सोच जाता है हमारा मन में कि हमारा पैसा नहीं होता है। और अगर अमर सिंह के बारे में सोचा और बीवी का रैली सुनाने वाला है, तब दोनों मिलकर कहाँ सेवकाई के लिए जा सकता है। बहुत बहुत बातें हमारे मन में है। वी आर वेटिंग फॉर मेनी थिंग्स। And if I ask you one by one for what purpose or for what subject you are waiting for, you may not say that. अगर मैंने एक व्यक्ति को उठाकर पूछूं कौन सा चीज के लिए वेटिंग में है, कभी कभी तो नहीं पता। संतोष, हम सब कुछ चीजों के लिए वेटिंग है। अगर आपके जीवन में वो वेटिंग या कुछ सोच या कुछ उद्देश्य नहीं है तो मैं हमेशा बताता हूँ हम कौन है। हम कौन है? कुछ उद्देश्य कुछ लक्ष्य नहीं है हमारा जीवन में। वो आर वी जस्ट लाइक एनिमल। We can't say that we are just like animals. Even an animal have their own goal. सुबह सुबह होते होते जब रोशनी आता है, पक्षियाँ या जानवर कौन सा लक्ष्य में घूमता है? खाने का, isn't it? So even they have a goal. And if we don't have any goal in our life, we don't know which name we can give to ourselves. अगर हमारे जीवन में उद्देश्य नहीं है तो हमको क्या क्या नाम देना है हमको पता नहीं। उदाहरण के लिए कुछ लोग सेवा करने के समय ये सोच में होगा, मेरे सेवा का समय मैंने ये चीज़ों करना चाहता हूँ, मुझे एक अच्छा पार्टनर चाहिए, तो भी ऐसा सोच में नहीं। उदाहरण, इफ यू आस्क मी रीचिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्ट वेयर आई एम लिविंग नाउ, हमारा कॉलेज में लड़की लोग बहुत लोग आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बहुत एप्लीकेशन भी आए हैं, हम क्यों नहीं ले सकता? मैं अकेला हूँ, इसलिए मैं बहुत लोगों को इधर उधर दूसरा कॉलेज में सजेस्ट किया। इवन आई एम वेटिंग फॉर ए टाइम व्हेन boys and girls will be sitting here and studying. You ask me, I will say that openly. Indirectly, I am also waiting for someone in my life so that I can accept admission for girls. एक काउंसलर का या एक प्रभु का वचन को अच्छे से जानने वाला लड़की के लिए इंतजार में भी बैठना है, नहीं तो हमेशा लड़का लोग आगे पड़ेगा। तो बोलने का मतलब ये था, हमेशा हम किसी चीजों के लिए वेटिंग में हैं। मंडे शुरू हुआ तो हम सैटरडे शाम के लिए वेटिंग में होगा क्योंकि संडे आ जाता। जब हम स्कूल में था, फ्राइडे शाम के लिए हम वेटिंग में मंडे स्कूल में जाते क्योंकि फ्राइडे शाम हुआ तो सैटरडे संडे छुट्टी है, 2 दिन छुट्टी मिलता है, वो स्कूल की कहानी। और जॉब के लिए जाने वाले लोग सुबह 10 बजे जॉब में गया तो शाम को 4 बजे के लिए वेटिंग में है। हम सुबह इधर आ जाता है 1 बजे के लिए वेटिंग में है। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, हमारा क्लॉक मर गया, our clock is dead. Now no one can look there and think that it is going to be 1 o'clock, so it is time for lunch, isn't it? So we all are waiting for something. There are things we wait for a long time. बहुत समय से हम वेटिंग में, कुछ चीजों के लिए वेटिंग में इंतजार में हैं। कुछ चीजें तुरंत हमको मिलने लगे वेटिंग में है। जैसे मैंने बोला 1 बजे है तो खाना, फिर शाम हुआ तो रूम। So there are short time of waiting, there are long time of waiting. In both sense, both gives us kind of weight, W-E-A-G-H-T, भारी लगता है। कल सुलेमान साहब ने रात को मुझे बोला 10:45 से लेकर 11:30 तक बच्चों लोग मुझे छोटा सा प्रचार करना है। मैं 2-3 दिन से बहुत इरिटेटेड हूँ। ये मुंह का अंदर वो जो आता है उसको क्या बोलता है? सलाइवा नहीं, मुंह का अंदर वो जो अल्सर जैसा आता है ना, पड़ जाता है। हमारा मंसूर का बाद लोग कुछ गाना बनाया था पिछले हफ्ता में, बहुत अच्छा से गाया। गाने का समय भी मुझको एक पता था, एलर्जी होगा मुंह के अंदर, अल्सर आएगा करके, क्योंकि टेस्ट ही था इसलिए। So even whenever in college, whenever I used to eat those cabbage mixed things, I used to get some allergy in my mouth. I know that I will get allergy, but what I will do? I will eat it because I like it. अगर पूछा तो क्याप्सी क्या है और रीति रिवाज क्या है और कौन सा गाना है हमें पता नहीं, हमको टेस्ट लगा तो हम कुछ भी खा जाता है।
जैसे हम सेवकाई के लिए जाने का समय क्या होना है सबसे पहले वी हैव टू एडजस्ट इन आवर फूड, अदरवाइज वी कैन डू मिनिस्ट्री। मैंने खाया, खाने के बाद जीप में आया और इधर आया, पूरा मुंह का अंदर इतना दर्द लगता है, अभी भी बात करने के समय दर्द लगता है। इसलिए मैंने सुलेमान सर से बोला, मैं प्रचार नहीं करता क्योंकि नहीं होगा। सर ने बोला वो ठीक है, सर ने बोला ठीक है। उसके बाद मैंने मन में तुरंत रूम में चला गया, क्योंकि बहुत साल के बाद एक चीज़ों के लिए मैंने नो बोल करके बोला। जैसे मैंने आज बच्चे लोग के सामने आकर प्रचार करने के समय प्रचार का इंट्रोडक्शन देने के लिए एक बात बताया। पहली बार मेरा ड्राइविंग का कहानी ये था, हमारा कॉलेज में जॉइसन करके एक लड़का है, वो अभी भी हमारा कॉलेज में है, जिनसन करके हो वो मैं हूँ। माइकल चैटर्जी करके एक साल था, वो माइकल चैटर्जी करके साल में क्लास लेने के बाद एक दिन मुझे बोला, आज शाम को दोपहर को 2 बजे में मुझे और मैडम को हॉस्पिटल लेके जाना है। ओमिनी वैन हमारा कॉलेज में होता है, वो वैन लेके आना, हमें हॉस्पिटल लेके जाना। मैंने सुना क्योंकि मेरा अंदर डाउट था, जॉइसन समझ के जिनसन से बोला होगा शायद, क्योंकि जॉइसन नोस हाउ टू ड्राइव, जिनसन डोंट नो हाउ टू ड्राइव, बट ही वांट टू ड्राइव। मैंने सोचा जॉइसन समझ के जिनसन को बोला होगा। मैंने और एक बार क्लास के बाद साथ में पूछा था, हाँ मुझे ही बोला ना, अरे तू मुझे मदद नहीं करता है क्या, तो बाकी लोगों को तो मदद करता है। उन्होंने मुझे ऐसे पूछा, मैंने सोचा अरे मैं क्यों ना बोल रहा है, हाँ करके बोला। उसके बाद मुझको डाउट ये था, ओमनी वन का गियर कहाँ कौन सा सिस्टम होगा, आगे वाला होगा कहाँ होगा, आई डोंट नो हाउ टू पुट गियर इन ओमनी वन। सो आई वेंट टू रूम, आई टुक वन ऑफ माय फ्रेंड्स मोबाइल एंड आई शो हिम द यूट्यूब, ऐसा ऐसा कर किया तो गियर आ जाएगा। फिर भी पहला ड्राइविंग करता समय था, क्लच कैसे दबाना है आई डोंट नो, सो आई टुक द डिसीजन, आई विल नॉट से नो। इज्जत की बात है, अगर मैं जाकर ना बोला तो तुरंत चार सामने क्लास में बोलेगा, अरे भाई लोग सुनना, मैंने इसको कुछ बातें बोला जिसको ड्राइविंग नहीं आता, बिल्कुल कॉलेज में बताया है ड्राइविंग आता है। डिसीजन लिया, कुछ भी करके साथ हॉस्पिटल लेके जाना है, वापस लेके आना है। 2 बज गया, मैंने गाड़ी का चाबी दिया और नोटिस बोर्ड से चाबी दिया, जाकर गाड़ी में बैठा, वहाँ देखा रिवर्स, गाड़ी तो ऐसा है आगे दीवार है, पीछे रिवर्स देके जाना है। देखा रिवर्स दबाया, सीधे पीछे लिया, फिर भी गाड़ी पे स्टीयरिंग ऐसा दबाया तो इधर आएगा और इधर आएगा पता नहीं था, नीचे देखा, इसी करके गाड़ी सेकंड गियर में डाल के साथ में घर तक पहुंचाया। वहां जाने के बाद दिक्कत यह था, घर से फिर भी मोड़ के वापस जाना है, बाहर आना है। तो बिफोर कार कम व्हाट आई शुड डू, कुछ भी एडजस्ट करके मैंने गाड़ी घुमा के रखा, वो भी सेकंड गियर में, क्योंकि सेकंड गियर में ज़्यादा स्पीड नहीं लगता है। वो पहाड़ी देश है वहाँ पूरा, पहाड़ से घूम घूम के हॉस्पिटल जाना है, कुछ भी हुआ तो खत्म, कार का हॉस्पिटल भी हो जाएगा, मैं भी हॉस्पिटल में हो जाऊँगा। बहुत डरते डरते तो सेकंड गियर, थर्ड गियर, सिटी में तो कैसे होगा, गाड़ियों से भरा हुआ सिटी है, भीड़ है, ट्रैफिक है, पता नहीं कैसे जाना है। सिटी पहुँचते डर ज़्यादा हो गया, भी करके हॉस्पिटल लेके जाके गाड़ी होता। तो बस मैंने एक बार उसको देखा, आया भाई, अब कॉन्फिडेंट, आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस दैट आई कैन आल्सो डू समथिंग, इवन आई कैन ड्राइव। So while going back in third gear, somehow we reached home. After that, I thought that sir don't know how to drive, that's why he took my help. मैंने सोचा sir को ड्राइविंग पता नहीं, इसने मेरा मदद किया। उसके बाद हमने सोचा तू सेकंड और थर्ड गियर में गाड़ी चलाया, फोर्थ और फिफ्थ में, तब मुझको पता चला सर को ड्राइविंग आता है। मैंने बोला सर पहाड़ी जगह है ना, 2 और 3, वेरी गुड, ऐसे ही संभाल के हमको चलाना है, ज़्यादा स्पीड नहीं। मैंने क्यों सेकंड और 3 में जब चलाया, सेकंड और 3 में गाड़ी 40 या 50 से ज़्यादा नहीं जाता है, थोड़ा रेसिंग ज़्यादा होगा, फिर भी रुक के जाता है। अगर 4 5 में गया तो गाड़ी रुक जाता है। उसके बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, तुरंत मैंने सोच लिया लाइसेंस लेना है, तो मुझे लाइसेंस चाहिए, आई डोंट इवन हैव लाइसेंस एट दैट टाइम। So I called my papa and then said, somehow I need license. My papa asked, do you know driving? I said, today, आज मैंने ड्राइविंग किया, साथ को हॉस्पिटल लेके गया, वापस भी लेके आया, कुछ नहीं हुआ गाड़ी को। उसके बाद लाइसेंस किया। मैंने कल रात को ये कहानी फिर भी सोचा, मैं कभी भी कुछ चीज़ों के लिए नहीं करके नहीं बोला, कुछ अच्छा चीज़ों के लिए, फिर भी क्यों मैंने सुलेमान सर से नो करके बोला। उसके बाद मैंने किसी से बात कर रहा था रात को, मैंने उनसे बोला भाई मैंने
पहली बार एक प्रचार करने के लिए मना किया। उसके बाद 2-3 चेहरा मेरा नजर में आया। कुछ लोग नो बोलता है, उनका चेहरा मेरा नजर में आया। प्रचार करने का समय नो बोलने वाला कुछ लोग है, उनकी नजर आया। सुबह मैंने सबू को देखा, काफी पकड़ते हुए इधर खड़ा था, मतलब वो भी बीमार है, फिर भी मैंने उसको लीडिंग करने के लिए वो भी खड़ा है। ये सब बातें मेरे अंदर कितना दबा रहा था, तूने क्यों नो बोला। तुरंत मैंने फोन लेकर इधर आराधना के समय आंटी को मैसेज डाला, एग्जैक्टली 10:45 मेरा वहां आ जाऊंगा, पता नहीं क्या बोलना है, मतलब मैं क्यों आ रहा हूँ मुझे पता नहीं, मेरा मन का अंदर ऐसा सोच आया। जब से लेकर मैंने वहां जाकर खड़ा हुआ तब से लेकर मेरा मन का अंदर कुछ टॉपिक भी नहीं था, यही टॉपिक है, फिर भी कुछ वचन मेरे अंदर था। लूका से सुसमाचार अध्याय 24 का 14 है। लूका से सुसमाचार द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 24 वर्स 14 है। somebody please read। मैंने ये सोच में था प्रचार नहीं करना है या लूक चैप्टर 24 वर्स 14 है। So I was in a kind of situation, I thought I will not preach today, but I want to preach. Yeah. And behold, I send the promise of my Father upon you, and there is yet in the city of Jerusalem until yet be endued with power from on high. Somebody please read Acts chapter, Acts of the Apostles chapter 1 verse 8. Acts of the Apostles chapter 1 verse 8. And other disciples came in a little ship, for they were not far from them, but as it were 200 cubits. Acts chapter 1 verse 8. Cubits. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witness in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the end of the earth. तो ये जो वचन मेरा मन में आया, मैंने सोचा इस वचन से हमको क्या बातें करना है। जब हम लूका के सुसमाचार के बारे में पढ़ता है, it was written by Apostle Luke, and the Acts of the Apostle is the second book or second part of Luke. So both of these books are written by Apostle Luke. So he says that in Luke chapter 24 verse 49, Jesus after his death, यीशु मसीह मरने के बाद, जब स्वर्गारोहण होने के बाद, चेले लोगों से क्या बोला, यरूशलेम में इंतजार में बैठना। किसके लिए? पवित्र आत्मा का अगुवाई और सामर्थ के लिए इंतजार में बैठना है। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम पाएगा, तब से लेकर दुनिया का अंत तक, जुडिया, जेरूसलम एंड टू द एंड ऑफ द अर्थ यू हैव टू गो एंड विटनेस मी, और यू विल बी माय विटनेस। मेरा गवाह बनकर तो दुनिया का अंत तक जाना है, जुडिया एंड जेरूसलम भी जाना है। अभी कहाँ है? यरूशलेम में इंतजार में है। हमारा बीच में बहुत पंडित लोग ये है, जरा मैंने स्कॉलर सिटिंग किया। How many of them were there waiting? कितना लोग था उस इंतजार में समय में, पहला समय 120 करके कहाँ लिखा? लोका से समाचार अध्याय 24 का 40 पढ़ के देखिए, वहाँ कितने लोग थे यीशु मसीह के चेले लोग। यहूदा में क्या हुआ? यहूदा तो मर गया, उसके बाद कितना लोग बच गया? 11 लोग इंतजार में हैं। हम सोच के देख सकता है, क्योंकि 12 लोगों में से एक नहीं है। अभी कितना है? There were 11। तो इंतजार में वेटिंग करना है, कब पवित्र आत्मा आएगा, कब समझ पाएगा, दे डोंट नो, उन लोगों को पता नहीं है। फिर भी यीशु मसीह ने क्या वादा दिया? इंतजार में बैठना, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम लोग मेरा गवाह बनिएगा। उसके बाद जब लूका की कहानियां पढ़ता है, हम थियोलॉजिकल स्टडीज करने के समय हमको ये समझ आता है टाइम गैप है दोनों के बीच में। जैसा लूका खत्म होकर प्रेरणा में काम शुरू नहीं हुआ, टाइम गैप था, और टाइम गैप के अंदर ये लोग इंतजार में था। इंतजार में बैठने का समय जैसा हमको भी लगता है कब होगा कब होगा कब होगा, ये तो बोला वेटिंग करने के लिए, हमको भी लगता है ना कब होगा, कब मिलेगा, कब होगा मेरा प्रार्थना का उत्तर, कब मिलेगा। फिर भी यीशु मसीह हमको क्या बोला? मांगा तो दिया जाएगा। फिर वी आर प्रेइंग, हम बहुत चीजों के लिए प्रार्थना में हैं। जब हम काना का मतलब यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 2 में एक शादी का कहानी है, कहाँ चल रही शादी? काना में, वहाँ शादी में है। जब वहाँ का जागृत खत्म हो गया, यीशु मसीह का माँ ने तुरंत जाके क्या बोला? जब जागृत कम हो गया तुरंत यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरा टाइम अभी तक
इसी बातें हम भी देखने की जरूरत है। जब हम इंतजार में बैठेगा, बारी लगेगा और बहुत कष्ट लगेगा, we will feel that weight. So for today's meditation, our title is waiting. W-A-T-A-N-G is W-E-I-T-A-N-G. इसका हिंदी है तो इंतजार बारी है. So when we are in a time of waiting, we will get the weight in our life. This is what I just want to convey. जब मैं और आप इंतजार में बैठेगा कुछ चीजों के लिए, हमको बारी लगेगा, क्योंकि बारी नहीं लगना है, हम बारी होना है, ये इसका मतलब। इधर इंतजार बारी है करके इसमें मैंने डाला, तुरंत वो पढ़ने का समय या ट्रांसलेशन करने का समय कैसा हो जाएगा, ये उनका कन्फ्यूजन है। इंतजार बारी है और इंतजार बारी पड़ रहा है। जब हम किसी चीजों के लिए इंतजार में होगा तब हमको कैसा लगता है, बहुत भारी लगता है ना मन में, कब मिलेगा, कब होगा, क्या होगा, क्यों नहीं मिल रहा है। At times we will lose our faith when we are in the time of waiting. कभी कभी हमारा विश्वास भी हमारे जीवन से निकल जाता है क्योंकि हम इंतजार में वेट करके करते हैं। So when we come and read Acts chapter 1 verse 8, the same thing is repeated there. So they were waiting, and you go and read Acts chapter 2 verse 1 to 4. How many of them were waiting? 11. So they were waiting, and if you read chapter 1 verse 18, Acts chapter 1 verse 15, if you again read Acts chapter 1 verse 15, you will see that 120, around 120 members were there. इतने लोग मिलकर इंतजार में वेटिंग शुरू किया, इंतजार करना शुरू किया जेरूसलम में। 1 का 15 पढ़ के देखिए कितना लोग हैं, 120 लोग वहां इंतजार में था। बाइबल में हम कभी भी देख सकते हैं 3, 7, 21, 40, 120, 12, यही रिपीट आता है नंबर। इधर 13 लोग का एक कम हो गया। अध्याय 1 में हम फिर भी पढ़ सकते हैं, मत्ती को सुना गया, फिर भी वहां कितने लोग वेटिंग में है, 120। हमको इतिहास ये सिखाता है, अलग अलग देश से अलग अलग भाषा बोलने वाला लोग यरूशलेम में आकर उन लोगों के साथ प्रार्थना में, अगर वो लोग भी हमारे जैसे सोचा मुझको जल्दी मिल गया तो अच्छा था, बदला में जल्दी आकर हमको सामर्थ मिला तो अच्छा था। परमेश्वर को एक योजना है, अगर उन्होंने हमको कुछ प्रॉमिस वाचा दिया तो हमारे जीवन से कुछ प्लान सब कुछ बना के ही रखा है। अगर 11 लोग प्रार्थना में नहीं बैठा उस दिन, एक बार सोचो उनका जिंदगी कैसा हो जाए। अभी तक यीशु मसीह हमारे सामने था, इसलिए हम थोड़ा अच्छा से जिया। अभी वो हमारे सामने नहीं है, फिर क्या करने के लिए बोला, मेरा दूसरा आगमन के लिए या पवित्र आत्मा आने तक वेटिंग में। इसलिए मैंने बोला कुछ लोग शादी के लिए वेटिंग में, कुछ लोग क्या जॉब मिलेगा, क्या नौकरी मिलेगा और कहाँ पे जाकर सेवा कर सकते हो, अलग अलग चीजों के लिए वेटिंग में है। तो वेटिंग का समय हमको बहुत भारी लगता है, कभी कभी हमारा विश्वास में कमजोर हो जाता है। क्योंकि वचन हमको ये सिखाता है, ये जो वेटिंग का समय हम बारी होना है प्रभु की विश्वास में, प्रभु में विश्वास में, और प्रभु का वचन से हम बारी होने का जरूरत है। जब प्रभु का वचन हमारे अंदर होगा वो वेटिंग के समय में, हमको कैसा होता है, हमारा आत्मिक रूप से हम मोटा हो जाता है, भारी हो जाता है। ऐसा होना है हम वचन में, क्योंकि जब पवित्र आत्मा इनका ऊपर उतर के आया, वो लोग अलग अलग भाषा में बातें किया। सिर्फ 11 लोग नहीं देखा उनका अनुग्रह, कितना लोग देखा, 120 से ज्यादा लोग, 120 लोग इनका ऊपर आए हुए अनुग्रह को देखा। मतलब परमेश्वर उनसे बोला तुम लोग वेटिंग में बैठना। वो वेटिंग का समय इसलिए था, लोग आकर उनके सामने बैठना है, उनका अड़ोस पड़ोस लोग आकर बैठना है, ताकि जब वो लोग आशीर्वाद पाएगा, when they get blessings and the power of Holy Spirit, many people will be seeing and experiencing that. That's why God said in Luke chapter 24 verse 19. Again please read. You will be my chapter 24 verse 49. पढ़ना, वेदों का काम अध्याय 1 का 8।
वहां लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम लोग मेरा गवाह बनेगा। एक बार सोच के देखो, वहां सिर्फ 11 लोग ही था, एक बार सोच के देखो सिर्फ 11 ही लोग था। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ पाए कितने लोगों के सामने वो 11 लोगों के साथ ही ये सब कुछ होते थे। So if you want to become a witness or if you want to become a testimony in front of many people, you have to wait. अगर आप इंतजार नहीं किया तो लोगों के सामने गवाह बनना नहीं होगा। इधर वो लोग इंतजार में था, इंतजार में बैठा, अभी वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य की शक्ति इसमें लोग देखा करके अध्याय 2 का 1 से लेकर 4 तक लिखा। बहुत लोग ऐसे लगा, अरे हम ये तो समझ रहे जो बातें सुन रहा है, this is in our own language we are listening, we are hearing. So many people got experience. So waiting has a purpose so that we can become witness of the blessings of God in front of many people. परमेश्वर का आशीर्वाद का गवाह हम बहुत लोगों के सामने पा सकता है अगर हम इंतजार में बैठा दो। सेकेंड, वेदों का काम अध्याय 8 का 1 पढ़ के देखना। वो सामर्थ पाने के बाद कितना बड़ा आंधी या तूफान या कितना बड़ा महापीड़ा आएगा, कितना भीतर हो गया, होते होते क्या पूरा हुआ, परमेश्वर का वाचा पूरा हुआ। अध्याय चैप्टर 8 verse 1 it is written that they were scattered here and there unto Judea and Samaria and to the end of the earth. इसलिए हम 2 बातें इस इंतजार की कहानी से हम सीखा। When we wait, we will gain weight from the Holy Spirit. Or when we wait, we will experience His power and His blessing in front of many people. जब हम इंतजार में बैठेगा, हमको भारी लगता है, हम सोच के देखा था, वचन में बताता है हम भारी होना है पवित्र आत्मा में, ताकि कितना बड़ा आंधी तूफान महापीड़ा आए तो भी हम क्या करने वाला बनेगा। परमेश्वर का वाचा था अध्याय 1 का 8 में, तुम लोग दुनिया खबर में जाकर मेरा गवाही। अध्याय 1 का 8 में क्या, अध्याय 8 का 1 में क्या हुआ, आंधी तूफान महापीड़ा आया, स्टीफनस को मार डाला, क्योंकि वहां क्या पूरा होता है, परमेश्वर का वाचा पूरा होते हुए हम देख सकता है। छोटी सी मनुष्य के अंदर से हम क्या क्या सीखा, हम सोचा तो और वेटिंग इज वेटिंग। हमारे इंतजार के समय में हम पवित्र आत्मा में वेट या मोटा होना है या भारी होना है, ताकि इतनी बड़ा आंधी तूफान महापीड़ा आएगा, हम परमेश्वर का वाचा को ही पूरा करेगा। वो लोग इधर उधर हो गए, क्योंकि क्या इसकी वाचा पूरा होते हुए हम देख सकता है। God promised, God fulfilled in chapter 8 verse 1. मैं सुबह सोचा मैं प्रचार के लिए आज खड़ा नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि बहुत डर लगता है वह बातें करने का समय। फिर भी किसी का एक शासक मैंने देखा, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 verse 21। किसी ने वास्तव में चाहता जा रहा जो मेरा कॉन्टैक्ट में है, नीति वचन अध्याय 18 में 21। Death and life are in the power of the tongue. मैंने सोचा जो कुछ बातें मैंने सुबह से लेकर देख रहा सुन रहा हूँ, मेरा निर्णय के विरोध है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 verse 21। मैं ये सोचा सुबह से लेकर कितना बातें प्रभु मैंने देख रहा हूँ, स्टेटस होगा, व्हाट्सएप होगा, इंस्टाग्राम होगा, कहाँ पे भी होगा, इवन आई अपलोड ऑन स्टेटस इन इंस्टाग्राम। एवरी वन इज स्पीकिंग टू मी दैट आई डिड ए रॉन्ग बाय सेइंग नो टू दैट। हर एक वचन और इधर आते हुए सबको को भी देखते हुए मेरा मन से यही सोच आ रहा है, मना बोलकर नो बोल के तूने बहुत बड़ा गलती किया, यू आर मिसिंग ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो तुरंत मैंने मेरा निर्णय बदल दिया। माइकल ने बताया था ऐसा कुछ अल्सर कुछ आया तो क्या करना है, नमक। मैंने तुरंत क्या कर दिया, मैंने तो कुछ नमक वहाँ लेके रखा है रूम के अंदर, तुरंत रूम में जाकर थोड़ा नमक लेकर जहाँ बहुत दर्द लग रहा है वहाँ डाल दिया, बहुत दर्द लगा, तुरंत जाकर प्रचार किया। प्रचार करने के समय मेरा अंदर से एक बात समझ आ गया, कभी कभी हमारे जीवन में बहुत ऐसा वाला बातें आता है, फिर भी वी हैव टू रिमेम्बर द कमिटमेंट व्हिच वी हैव। मैं किसके लिए हूँ, मैं क्या चीज के लिए इधर आया हूँ। वी हैव टू रिमेम्बर दैट ऑलवेज, whenever we crack jokes or whenever we go somewhere, one thing you have to hold in your neck. What is that? Your calling, your commitment. You have said many things through your testimony.
You left many things and you came here. Make sure that you should not leave these things and go back. You should gain those things, then you will get that weight. Maybe it is 2 or 3 years. If you feel that you don't have that weight in God or in God's word, don't go back. This is what I say. और आपको ऐसा महसूस हो रहा है मैं कुछ नहीं पाया इस 3 साल में भी. It is better you get trained again some more years. Without weight, अगर वो भारी नहीं है आप फिर भी सेवकाई के लिए निकल पड़ा, वो पवित्र आत्मा का आशीर्वाद सामर्थ्य का अनुभव जीवन में नहीं है, फिर भी सेवकाई के लिए निकल पड़ा, तो छोटी मुसीबत के बीच में आपका विश्वास क्या होगा? This is what happened in the life of Iscariot Jude. यहूदा बेंजामिन में क्या हुआ? He was listening from the word of God, he was with the word of God, and he was with Jesus. He did not gain anything for his heart. उसका हृदय में वचन नहीं था. That's why he was living a worldly life. दुनिया का अनुसार जिया. When he came to a point that he understood he was doing a wrong thing, what he did, he committed suicide. So what we have to learn from today's meditation, according to Luke chapter 24 verse 49, Acts chapter 1 verse 8 and 2 verse 1 to 4 and 8 verse 1. हम परमेश्वर का वचन की वो बारी हमारे जीवन में, वो बारी पर हमारा वो वेग हमारे जीवन में महसूस नहीं हुआ तो we are good for nothing. अपनी चीज के लिए उपयोग नहीं है. If we have that weight, कितना मुसीबत आए, कितना पीड़े आए, maybe we will be scattered here and there, हम इधर उधर होगा, फिर भी we are fulfilling the word of God, we are fulfilling the promise that we receive. हम हमारा बुलावन को पूरा करते हुए ही आगे जा सकता है. तो विश्वास करता हूँ आज की छोटी सी चीजें आप लोगों को मदद से समझ आए हो. And if we are not having that weight of your calling in your life, make sure that not only morning prayer, not only evening prayer, you have to spend time with God and make sure that your life got stuck with the word of God. प्रार्थना करना है परमेश्वर के वचन में मेरा हृदय को, मेरा जीवन में परमेश्वर का बारीपन, मेरा वचन की बारीपन मेरा हृदय में नहीं है तो सुबह का 9 बजे का प्रार्थना आपको नहीं होगा, शायद शाम का प्रार्थना नहीं होगा. मोर टाइम परमेश्वर के वचन के लिए देना. Your life will be a time of waiting and you will be gaining weight so that you will be a good servant in the days to come. आइए हम आग बंद करते हुए प्रार्थना में जाएंगे. मेरा परमेश्वर आपका धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए. प्रभु हम जो वचन आज सुना प्रभु मैंने पर्सनल रूप व्यक्तिगत रूप से जो वचन मेरे जीवन में आप बहुत बातें मुझे सिखाया.